हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 16 ओलिवर ट्विस्ट रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस व्हिच इज इन द रैपिड रीडर सिलेबस क्लास 10. So the end of Sykes. So the title itself suggests that Bill Sykes is going to die here. Okay, but in a very interesting manner he is going to die. Nobody is going to kill him. He is going to die. In what manner we will be seeing. You see, every bad person is always punished by fate. Okay, every bad person is always punished by fate. Okay, भाग्य जो होता है ना, फेट जो होता है वो हर बुरे इंसान को पनिश करता है. तो साइक्स के साथ भी बिल्कुल यही हुआ. द सेम थिंग हैपन विद साइक्स दैट he died a very terrible death and in a very terrible manner, and we'll see that. Okay, now what happened is that same evening in an old ruined house near the river Rotherhead, Toby Crackit was sitting with two more of his companions. तो उसी इवनिंग को जो है चैप्टर 15, वी हैव एंडेड चैप्टर 15. यू सी वॉच द वीडियो ऑफ चैप्टर 15, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो दैट सेम इवनिंग एक टूटे फूटे घर में इन एन ओल्ड रिविन हाउस जो रिवर रॉदरहीथ के बिल्कुल सामने है, करीब है, टोबी क्रैकेट जो है उसके दो और दोस्तों के साथ वहाँ पे एक घर पे बैठा हुआ था. इसी टूटे फूटे घर पे टोबी क्रैकेट वॉज सेटिंग विथ टू ऑफ हिज कंपेनियंस इन दिस ओल्ड हाउस. नाउ वन ऑफ द कंपेनियंस सेड दैट Fagin was arrested by the police. तो Fagin already arrest हो चुका है. तो Toby asked one of his companions, when was Fagin taken? तो Fagin को कब जेल ले जाया गया? Okay, and his companion replied that the police had to save Fagin as the crowd was about to attack Fagin. तो उसके कंपेनियन ने, टोबी क्रैकेट के दोस्त ने कहा कि एक्चुअली फैगिन को जो है पूरा क्राउड फैगिन को अटैक करने वाला था. द होल क्राउड वाज अबाउट टू अटैक फैगिन and then the police had to somehow save him. Okay, so Fagin was in the middle and the whole crowd were the police people were actually all around him, and this was the crowd. Okay, this was the crowd all ready to attack Fagin was at the center, and this was the police was actually protecting Fagin from the crowd, because according to law Fagin has to be taken to jail and he will be punished by the law, right? तो पुलिस जो है वो फैगिन को पूरे क्राउड से बचा रहा था. बट देन द क्राउड हैड समहाउ बीन सक्सेसफुल इन अटैकिंग फैगिन. तो फैगिन को जैसे जैसे क्राउड ने जो है अटैक किया, लाइक थ्रोइंग स्टोन्स एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड फैगिन वॉज ब्लीडिंग एंड ही वॉज ऑल मडी. तो फैगिन जो है ब्लीड कर रहा था और वो बिल्कुल जो है उसके शरीर पे मड लगा हुआ था. मड वॉज ऑल ओवर हिज बॉडी एंड ही वॉज ब्लीडिंग ऑल्सो. मे बी द क्राउड समहाउ अटैक्ड हिम. ओके, नाउ दिस कंपेनियन also said, तो इसी दोस्त ने, इसी कंपेनियन ने कहा कि that Fagin would surely be hanged, कि अब जो Fagin पकड़ा गया है, that now Fagin has been caught by the police. Looking at the criminal record of Fagin, he is definitely going to be hanged. तो Fagin को जो है definitely फांसी मिलेगा by the law, क्योंकि वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज उसने किया है इतना दिन, ठीक है, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगा. एंड द पनिशमेंट इज दैट he was surely going to be hanged. Now suddenly what happened that there was a loud knocking at the door. दरवाज़ा बहुत जोर जोर से जो है कोई नॉक करने लगा. and they all became alert. तो सब लोग जो है अंदर, टोबी क्रैकेट, उसके कंपेनियंस, all became alert. Who could it be? कौन इस वक्त कौन आया होगा? पुलिस तो नहीं. Okay, it could be police or anybody. Now Toby, he quietly went near the door and he peered through the shutters. तो दरवाजे में जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, कुछ कुछ इन सम डोर्स you'll find small gaps. So from these gaps, when Toby looked outside, peered outside, he saw that it was Bill Sykes. तो Bill Sykes आ गया है. Okay, and Toby Crackit opened the door for Bill Sykes. Now Bill entered. He was looking like a ghost. उसका पूरा जो है शरीर जो है, he was tired because he kept running from the police, sometimes here, sometimes there. And in chapter 15 we come to know that Dr. Losburn has already informed, okay, that Bill Sykes was located near Rotherhead along with his dog, and the police will definitely catch the murderer tonight. ठीक है, तो ऑलरेडी जो है लॉसबर्न, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 15 दिस थिंग. तो टोबी क्रैकेट जो है कभी इधर भाग रहा था, कभी वहाँ पे भाग रहा था, पुलिस से छुप रहा था.
Okay, he was not constantly staying in one place. He was running here and there, running away from the police, so he was tired. That is why he was looking like a ghost. Now his dog quietly walked in and sat at one corner. उसका कुत्ता जो है बिल्कुल a very obeying dog of Bill Sykes. Okay, बहुत Bill Sykes को obey करता है उसका कुत्ता जो है. तो उसका कुत्ता जो है घर के अंदर घुस के एक कोने में जाके बैठ गया चुपचाप. ओके, बिल देन आस्क्ड अबाउट फैगिन. तो बिल ने पूछा कि फैगिन क्या हालचाल है. मैंने सुना कि फैगिन पकड़ा गया. क्या ये सच है? इज इट ट्रू दैट फैगिन हैज बीन कॉट? ऑलराइट. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड इफ नैन्सीज डेड बॉडी हैज बीन बरीड. देखिए, नैन्सी को उसने मर्डर किया. ही मर्डर्ड नैन्सी एंड देन ही वाज आस्किंग दैट हैज नैन्सीज डेड बॉडी बीन बरीड. क्या नैन्सी के डेड बॉडी को बरी किया गया है? ओके, एंड टोबी क्रैकेट एंड द अदर कंपेनियंस ने कहा हाँ, yes, her dead body has been already buried. Now suddenly there was another knocking at the door. फिर से दरवाजा जो है कोई नॉक कर रहा था. अब कौन आया है? Who is now who has come? अब कौन आया है? And this time Toby opened the door again. इस बार फिर से टोबी ने जब दरवाजा खोला, it was now Charlie Bates who had come. And Charlie Bates was shocked after seeing Bill. तो बिल को देख के चार्ली बेट्स बिल्कुल शॉक हो गया था. एंड यू सी ही वॉज ऑल्सो एंग्री. ही वॉज वेरी मच एंग्री एंड ही अटेम्प्टेड टू अटैक बिल. तो वो इतना गुस्से में था. वो क्यों गुस्से में था? वाई वॉज चार्ली एंग्री? एंड ही एक्चुअली केम एंड ही ट्राइड टू अटैक बिल. वाई ही वॉज एंग्री? यू सी, नाउ वाइल अटैकिंग बिल ही एंग्रीली टोल्ड हिम मॉन्स्टर. जब चार्ली बिल को अटैक कर रहा था तो उस टाइम चार्ली ने बिल को कहा तुम मॉन्स्टर हो, यू आर अ मॉन्स्टर. व्हाई? बिकॉज ही ऑल्सो सेड दैट ही वुड हैव नेवर टोल्ड अबाउट नैन्सीज मीटिंग एट द लंदन ब्रिज इफ ही हैड नोन दैट बिल वुड किल हर. तो चार्ली कहता है कि अगर मुझे पता होता, इफ आई हैड नोन दैट यू वुड किल नैन्सी इन दिस वे, आई वुड हैव नेवर टोल्ड यू अबाउट नैन्सीज मीटिंग एट द लंदन ब्रिज. अगर मुझे पता होता कि तुम नैन्सी को इस तरीके से मारोगे, मर्डर करोगे नैन्सी का, तो मैं तुम्हें नैन्सी के बारे में कभी नहीं बताता, उसकी मीटिंग के बारे में जो उसने लंदन ब्रिज में जो मीटिंग किया दो लोगों के साथ. आई वुड हैव नेवर इन्फॉर्म्ड यू अबाउट नैन्सीज मीटिंग इफ आई हैड नोन दैट यू वुड किल हर. ठीक है. सी, चार्ली थॉट दैट Fagin told him that I will give you £1 if you can see that with whom Nancy is going and meeting. अगर तुम मुझे ये पता लगा के दो कि नैन्सी किसके साथ मीटिंग करने जाती है, क्या उसका कोई नया फ्रेंड तो नहीं है, तो I will give you £1. तो Charlie Bates went. He was quite innocent, you see. He went and he came and he gave the information to Fagin. Fagin gave the information to Bill, and Charlie thought maybe Bill will scold Nancy. Maximum Bill would scold Nancy, but he never expected that Bill Sykes would actually kill Nancy. ठीक है. तो इसीलिए जो है चार्ली बेट्स बहुत गुस्से में है. चार्ली बेट्स इज वेरी वेरी एंग्री. ओके, मैक्सिमम ही एक्सपेक्टेड दैट मे बी Bill would threaten her or scold her, but he never expected that Bill would kill her. But here things turned opposite, and that is why Charlie Bates is very angry on Bill. Now Charlie then shouted. He shouted loudly, okay, murder, help, murder, help. Okay, and he attacked Sykes and threw him on the ground. तो उसने Sykes को धक्का दिया. He attacked Sykes and he threw Sykes on the ground. उसने Bill Sykes को ज़मीन पे पटक दिया. अब Sykes जो है वो डिफेंस में उसने भी अटैक किया. Sykes also attacked him too and caught hold of his throat. तो Bill Sykes caught the throat of चार्ली बेट्स. ओके, उसका गला बहुत ज़ोर ज़ोर से पकड़ के दबाने लगा. ही स्टार्टेड प्रेसिंग हिज थ्रोट वेरी हार्ड. ओके, बिल साइक्स स्टार्टेड प्रेसिंग द थ्रोट ऑफ चार्ली बेट्स वेरी हार्ड. ओके, एंड राइट देन टोबी पॉइंटेड. तभी जो है टोबी पॉइंटेड हिम टू द विंडो. टोबी ने बिल को विंडो की तरफ दिखाया. Actually what happened, you see, a huge crowd had gathered outside along with the police officers. So there were many lights coming from outside because it was already evening time. It was getting dark also. It was almost dark only. ओके, वो डार्क भी हो चुका था. तो इसीलिए जो है नीचे से जो है सब लोग जो है ऊपर लाइट्स मार रहे थे. पीपल वेयर एक्चुअली थ्रोइंग लाइट्स ऑन द विंडो. सो देयर वेर प्लेंटी ऑफ लाइट्स कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. सो टोबी पॉइंटेड दैट दोज लाइट्स टू बिल साइक्स एंड बिल साइक्स बिकेम अलर्ट. बिल साइक्स जो है वो अलर्ट हो गया है.
तो यहाँ पे देखिए जो मैंने अभी अभी कहा कि देयर वाज अ ह्यूज क्राउड आउटसाइड along with the police who started to break the door. अब पूरा crowd ऊपर आ चुका था. The whole crowd and the police had already come near the door, near the house, and they were, thumping on the door, trying to break the door. And Charlie shouted from inside. Charlie अंदर से चिल्ला रहा है कि yes, Bill Sykes is here, he's here, break down the door. You are searching for Bill Sykes, so he's here. वो यहीं पे है, Bill Sykes यहीं पे है. दरवाज़ा तोड़ दो, दरवाज़ा तोड़ दो. ओके, नाउ बिल साइक्स बिकेम अलर्ट एंड ही थ्रू चार्ली इनसाइड एंड लॉक्ड द डोर. तो उसने चार्ली को एक दूसरे रूम में फेंक दिया और दरवाजे को जो है बंद कर दिया. ओके, एंड द फ्रंट डोर वॉज डबल लॉक्ड एंड चेन्ड. ओके, सो साइक्स ओपन द विंडो. सो द फ्रंट डोर, सामने का जो दरवाज़ा है वो डबल लॉक था. इट वॉज डबल लॉक्ड एंड मोर ओवर इट वॉज लॉक्ड एंड देयर वे चेन्स ऑल्सो, with which the door was very nicely, वेरी टाइटली लॉक्ड. दरवाजे को बहुत टाइटली लॉक किया गया है, डबल लॉक ऊपर से, ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वे चेन्स ऑल्सो. ओके, एंड साइक्स थॉट दैट नो आई एम देन सेफ इनसाइड, मैं अंदर सेफ हूँ. तो ही ओपन द विंडो, ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द बैक साइड. तो साइक्स ने सोचा, साइक्स थॉट दैट आई विल ओपन द विंडो, गो टू द रूफ, मैं छत पर चढ़ जाऊँगा, आई विल गो टू द रूफ एंड एस्केप फ्रॉम द बैक साइड. अब देखते क्या होता है. नाउ यू सी ही लुक डाउन एंड द होल क्राउड सॉ साइक्स गोइंग अप. तो सारे क्राउड ने जो है साइक्स को देख लिया ऑलरेडी गोइंग टू द टॉप ऑफ द रूफ. एंड बिल साइक्स कर्स्ड द क्राउड दैट ही विल नेवर बी एबल टू कैच मी, आई विल रन फ्रॉम टुडे, आई विल रन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, विल नेवर बी एबल टू कैच मी. ही वाज लाइक कर्सिंग द क्राउड. ओके, तो सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द क्राउड शाउटेड फॉर अ लैडर. तो कुछ लोग जो हैं क्राउड में से कहा कि ब्रिंग अ लैडर, विल क्लाइम टू द रूफ एंड विल गेट एट दिस क्रिमिनल टुडे. एंड सम ऑफ देम ऑल्सो टोल्ड द पुलिस दैट शूट साइक्स को गोली मारो. ओके, बट अगेन यू सी पुलिस विल नॉट डू दैट बिकॉज पुलिस हैज़ टू कैच हिम alive. Police has to catch him alive because they need to know that if there was any higher authority above Bill Sykes, कि Bill Sykes के ऊपर भी कोई उसका बॉस है, उसका कितना क्रिमिनल गैंग्स है, in order to collect other informations they need to arrest Bill Sykes alive. So they did not shoot, but the crowd was continuously shouting at the police that you shoot at Sykes. Somebody shouting, get the ladder, we'll go to the roof. Okay, Sykes now ordered Toby for a rope. अब Sykes ने Toby को ऑर्डर किया कि Toby, bring me a rope or I'll kill you. Go and bring me a rope. Okay, मेरे लिए रस्सी लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, I'll kill you. And he also said that the tide was coming up when he came. Tide, okay, the river waves. Okay, sometimes tide is up, sometimes tide is down. Okay, high tide, low tide, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में. So he said the tide was high at that time when he actually came in. जब वो आया था तब tide जो है वो high tide था. Okay, so now that he was going, the tide was low now. तो river bed जो है वो सूख चुका होगा and the sand would be little wet, and he can actually jump from the backside and drop near the bank of the river and run away from there. Okay, so he would get out at the back and drop in the river. River matlab not deep river. Okay, does not mean he's going to drop in the middle of the river. Actually the tide was low now. By now the tide was low. अब तक तो tide low tide हो गया है, तो river जो है गीला गीला होगा थोड़ा, river side. Okay, the river side would be little wet, so he can easily jump on the soft wet sand and he can easily escape from there. And moreover, you see the entire crowd is in the front side, so he would easily escape from the back side. तो पूरा crowd जो है वो तो front side में है, तो Bill's plan was that I can easily escape from the back side. ठीक है, क्योंकि पूरा crowd along with the police वो लोग front side में है, they are all in the front side. Now Toby Crackit was afraid and Toby Crackit showed him where the rope was. Toby Crackit ने दिखाया कि rope रस्सी उस तरफ है, the rope is that side, and now actually the rope was on the roof. So Sykes now hurried up on the roof. तो Sykes जो है वो roof के ऊपर चढ़ गया. Okay, going to get hold of the rope. रस्सी को पकड़ने के लिए, रस्सी को लेने के लिए वो roof छत के ऊपर चढ़ गया. And Charlie again, you see, somehow he got to the window again, and once again he shouted to the crowd and police that Sykes was going to the back side, so they must guard the back. Okay, so Charlie को already पता चल गया. Charlie already came to know that Bill was going to run away from the escape from the back side. So that is why Charlie got to the window. वो खिड़की पे आया
और वो चिल्लाने लगा डाउन, ओके, लुकिंग डाउन ही स्टार्टेड शाउटिंग to the crowd and the police that Bill is going to the backside, so go to the backside and guard the backside. Okay, he was alerting the police and the crowd both because he was extremely angry the way Nancy was murdered. जिस तरीके से नैन्सी का मर्डर हुआ है, चार्ली जो है वो बहुत गुस्से में था और चार्ली चाहता था, चार्ली एक्चुअली वांटेड द पुलिस एंड द क्राउड टू फिनिश बिल साइक्स ऑन द स्पॉट, और एटलीस्ट बिल साइक्स मस्ट गेट अरेस्टेड. सो ही स्टार्टेड एक्चुअली हेल्पिंग द क्राउड, ओके, टू लोकेट बिल साइक्स. तो उसने कहा कि बिल साइक्स पीछे से भाग रहा है, आप लोग पीछे की तरफ जाइए और बिल को पकड़िए वहाँ से. मीन वाइल द क्राउड हैड ब्रोकन द डोर एंड एंटर द हाउस. तो मीन वाइल क्राउड तो ऊपर आ चुका था, तो दे वर कंटिन्यूसली kicking the door, punching the door, thumping the door, and finally the door broke and the whole crowd entered the house. पूरा crowd जो है दरवाजे को तोड़ के घर के अंदर घुस गया. And you see, Bill Sykes again got another chance since everyone was in the front side now. तो सब लोग जो है front side में थे. So Bill now got a chance to escape from the back and save his life by jumping into the river bed. ठीक है, तो बिल साइक्स को फिर से एक मौका मिल गया कि सब लोग क्योंकि फ्रंट साइड में हैं, बिकॉज एवरीबडी इज इन द फ्रंट साइड, सो आई कैन सेव माई लाइफ, दिस इज माई लास्ट चांस टू सेव माई लाइफ बाई जंपिंग इन टू द रिवर बेड. कि मैं रिवर का जो बैंक है, बेड है, उसमें जंप करूँगा और गीले मिट्टी में मैं गिरूँगा. आई विल जंप ऑन द सॉफ्ट वेट सैंड, सो इट वोंट हर्ट मच, एंड देन फ्रॉम देयर आई विल रन अवे. ओके, सो ही फास्टेंड वन एंड ऑफ द रोप. तो रस्सी के एक छोर उसने जो है he fastened one end of the rope around the chimney stack. तो रूफ के ऊपर जो चिमनी होता है ना, on the roof there is a chimney, no, so he tied one rope around the chimney. Okay, he planned to slide down, cut the rope and run away. तो उसका ये प्लान था, बिल साइक्स प्लान was that one end of the rope, this is a rope, okay, this is a rope, okay, one end of the rope he tied around the chimney, and then the other end what he would do is that he would tie around his neck, and then slowly he would slide down, and he would have a knife with him. So when he would be almost about to reach the land, say this is the land, once he would be almost about to reach the land, he will cut the ropes and he will fall down. Okay, he will drop down and he can run away from there. This was his plan. Okay, लेकिन बीच में अब कुछ हो गया. देखिए, the other end of the rope he put over his head. तो एक एंड, वन एंड तो ही टाइड ऑन द चिमनी, ओके, द अदर एंड ही पुट ऑन हिज नेक. उसने अपने गले के साइड में दूसरा रोप जो है पुट अराउंड हिज हेड एक्चुअली. ओके, ही पुट अराउंड हिज हेड एंड ही थॉट स्लोली आई विल गो डाउन एंड कट द रोप एंड देन ड्रॉप डाउन एंड रन अवे. ओके, बट सडनली देयर वाज ए हेलुसिनेशन. उसको कुछ हेलुसिनेशन हो गया था, को कुछ हेलोसिनेशन हो गया था. हम लोग बोलते हैं ना केमिकल लोचा, आपने मूवी देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, वो जो केमिकल लोचा होता है, लग रहे हो मुन्ना भाई, उसमें केमिकल लोचा होता है ना, उस फिल्म के हीरो को हेलोसिनेशन. ओके, सो सडनली बिल साइक्स हैड अ काइंड ऑफ अ हेलोसिनेशन. ओके, बट सडनली ही अटर्ड अ येल ऑफ टेरर एज इफ ही सॉ नैन्सी. ऐसा लगा कि उसने नैन्सी को देखा, यानी शाउटेड नैन्सी. ऑलराइट, ही शाउटेड लाइक दैट, नैन्सी. Then he threw his arms over his head. तो उसने, हम लोग डर के मारे क्या करते हैं, when we are too much afraid, what do? We lift our hands and put over our head, right? हम लोग जब बहुत डरे हुए होते हैं, when we are too much afraid, then what do? We lift our hands. हम लोग अपना हाथ उठा देते हैं और अपने सर पे रख देते हैं. We lift our hands and put over our head. The same thing happened with Bill Sykes. He was so much terrified as if he saw Nancy. जैसे कि नैन्सी को उसने अपने आंखों के सामने देख लिया और उसने जैसे अपना हाथ उठाया, अपने सर के ऊपर रखा, he put his arms over his head as if he was very horrified. And when he did this, the moment he did this, he lost his balance. वो रूफ से वो अपना बैलेंस उसका खो चुका था, बैलेंस. he lost his balance and fell off the roof. वो रूफ से नीचे गिर गया and dropped down from a height of 35 feet. तो 35 feet हाइट से वो नीचे गिर गया. And the rope which was tied over his head, that actually got stuck around his neck. So the rope got stuck around his neck and he died hanging. वो जो है जैसे फांसी दिया जाता है लोगों को, the way people are hanged or a criminal is hanged,
he got automatically hanged because the rope stuck around his neck and he died instantly. Okay, and his knife that he had kept with him to cut the rope, that knife was still lying in his hand. तो जो नाइफ उसने निकाला था रोप को कट करने के लिए, वो नाइफ उसके हाथों में ही रह गया. दैट नाइफ वॉज लाइंग इन हिज हैंड एंड ही डाइड हैंगिंग. ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्या होता है कि बिल का कुत्ता. व्हाट हैपेंड विद बिल्स डॉग. नाउ बिल्स डॉग रैन बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स ऑन द रूफ. तो बिल का कुत्ता जो है वो छत के ऊपर ही वॉज रनिंग बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स ऑन द रूफ itself. Now he saw his master in that position. Now he understood or not, that is a different thing, but he is his master's follower. वो तो अपने मास्टर का जो है भक्त है. तो उसने क्या किया, what he did, he jumped on Bill's shoulders, but unfortunately he missed the aim. तो उसने जैसे ही बिल के शोल्डर पे जंप किया, ओके, उसने जैसे बिल के शोल्डर पे जंप करना चाहा, एक्चुअली ही मिस द एम एंड इंस्टेड ही फेल राइट डाउन एंड ही फेल स्ट्रेट ऑन द रिवर बेड. नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट हिज हेड स्ट्रक अगेंस्ट अ स्टोन एंड ही डाइड देयर इंस्टेंटली. तो अनफॉर्चुनेटली वो जो कुत्ता है वो बिल साइक्स के ऊपर जंप करने वाला था, लेकिन अपना बिल साइक्स के शोल्डर के ऊपर जब वो जंप करने वाला था, लेकिन वो शोल्डर मिस हो गया उसका. और कुत्ता जो है, द डॉग एक्चुअली इंस्टेड ऑफ जंपिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ बिल, ही जम्प्ड, ही मिस द एम एंड जम्प्ड ऑन द अदर साइड and fell straight on the river bed, and there was a stone, big stone, and the dog fell straight on the stone and he died there instantly. कुत्ता जो है वो भी मर गया. तो this is how Bill Sykes died. This is what I told you. This is fate. You know, the way he killed Nancy, this is unacceptable. This cannot be accepted. ये accept नहीं किया जा सकता. और चार्ली बेट्स भी जो है, चार्ली बेट्स also felt very bad. और उसने ये कहा, एक्चुअली ही सेड दैट हैड आई नोन दैट यू वुड किल नैन्सी इन दिस वे, आई वुड हैव नेवर इन्फॉर्म्ड यू अबाउट नैन्सी. फैगिन वॉज कॉट ऑलरेडी एंड फैगिन वुड बी हैंग्ड अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द कंपेनियंस. तो पूरा गैंग ही पकड़ा गया. द होल गैंग हैज़ बीन कॉट. जैक डॉकिंस कॉट. चार्ली बेट्स विल बी कॉट हियर बिकॉज द होल क्राउड हैज़ ऑलरेडी एंटर्ड इन. टोबी क्रैकेट विल बी कॉट, वी नो, बिकॉज टोबी क्रैकेट, his companions, Charlie Bates are all inside the house. The crowd has entered the house already along with the police. So all of them will be caught. So it is the finishing of it is the end of the whole entire criminal gang. Okay. Now in chapter 17 and 18, two more chapters left. In chapter 17 and 18, we are going to learn about Oliver's background. हम लोग Oliver का background हम लोग जानेंगे, स्पेशली चैप्टर 17 में. इन चैप्टर 17 वी विल नो अबाउट ऑलिवर्स बैकग्राउंड. ओके, सो दिस इज ऑल. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. So that's all. Subscribe, like and share my videos, and please invite your friends also, those who are in class 9 and 10, invite your friends also to subscribe to the channel and get maximum benefit. With love from OmniGyan, and all the best to all of you.